Hello friends, myself Dr. Aishwarya and I'll be taking your homeopathic materia medica lecture series. Okay, so from today we will start homeopathic materia medica lecture series. Okay, we'll just see in this today's lecture just a introductory part of what is homeopathic materia medica, how homeopathy was discovered, and how homeopathic materia medica came into existence. So just we'll go through introductory section so that you can understand. Okay, you can understand what is the homeopathic materia medica subject. So from today we will start this lecture series. Before starting the lecture series, I'd like to tell you that we will be covering first year BHMS portion. Along with first year BHMS portion, we'll do some MCQ based preparations. So this MCQ based preparation will help you in your next and EIPGT exams. So you'll be having a next exam, that is exit entrance exam, right? And if you if you are willing to do MD, so there will be an entrance exam called AIPGT exam. So if you start studying from first year itself, it will be very easy for you to crack the entrance exam as well as next exam. So we'll just start your preparations MCQ based also. And then third thing is that we'll do your clinical discussions. We'll do some practical case discussion, like if you are doing some drug. Okay, on that day I will give you some cases, okay, of that particular drug, like how we have given that drug in that particular case, what all characteristic of that patient we had taken. Okay, so we'll do this case discussion also. It will be very practical discussion so that you can understand theoretical part as well as you can understand the practical part. So you have to understand the concept as well as you have to remember. Okay, memory is also important over here because you have to keep in your mind that particular drug. So memorization is also important, but understanding that concept is equally important. Okay, so we will start our lecture series from today, and this section will be your introductory session. So we'll go through what is homeopathic materia medica, how homeopathy came into existence, what is homeopathy, and how homeopathic materia medica came into existence, and why NCH has added homeopathic materia medica subject in your first year BHMS. So we will have a look why they have added, why it is important for you, how should you study this subject, and why should you study this subject from first year itself. Okay. Now let's start what is homeopathy. Okay. Now let's start. Now what is homeopathy? Homeopathy is a specialized system of medicine for treating both humans and animals, discovered by Dr. Samuel Hahnemann in 1796 in Germany. अभी समझो होम्योपैथी क्या है. होम्योपैथी एक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जो ट्रीट करता है एनिमल्स को एज वेल एज ह्यूमंस को. हम्म. सो जैसे एलोपैथी एक ट्रीटमेंट है, एलोपैथी भी क्या करती है, ह्यूमंस को ट्रीट करती है. आयुर्वेदा क्या करती है, ह्यूमंस को ट्रीट करती है. यूनानी भी ट्रीट करती है. सो इट इज अ सिस्टम ऑफ मेडिसिन. जैसे एलोपैथी है, आयुर्वेदा है, यूनानी है, वैसे होम्योपैथी भी एक मेडिसिन सिस्टम है. इट इज अ सिस्टम ऑफ मेडिसिन विच ट्रीट्स ह्यूमंस, एनिमल्स. अभी होम्योपैथी इतनी डेवलप हुई है कि वो प्लांट्स को भी ट्रीट करती है. ओके, वी ट्रीट प्लांट्स ऑल्सो. ठीक है. सो जो पेस्टिसाइड्स एंड ऑल यूज हो रहे हैं अभी फार्म्स में एंड ऑल, वी कैन गिव आर होम्योपैथी टू दैट प्लांट्स so that they can grow
many fruits and all they can grow. ओके, तो ये जो हम होम्योपैथी है, ये हम अगर प्लांट्स को देंगे तो वो बहुत अच्छा प्लांट डेवलप कर रही है, ठीक है, हेल्दी फूड डेवलप कर रही है। सो अभी उसका डेवलपमेंट हो रहा है इन प्लांट्स ऑल्सो। तो ये जो हमारी होम्योपैथी है, ये ह्यूमंस को भी ट्रीट कर रही है, प्लांट्स को भी ट्रीट कर रही है, एनिमल्स को भी ट्रीट कर रही है। सो व्हाट इज होम्योपैथी? ये एक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जो ट्रीट करती है प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस। और ये डेवलप हुई 1796 में। किसने डेवलप की? डॉक्टर सैमुअल हैनेमन ने ये सिस्टम डेवलप की। कहाँ डेवलप की? ये जर्मनी में डेवलप हुई। ओके, सो हु इज द फाउंडर? डॉक्टर सैमुअल हैनेमन इज द फाउंडर ऑफ होम्योपैथी। अभी ये जो होम्योपैथी है, ये बेस्ड है कोई प्रिंसिपल्स के ऊपर। प्रिंसिपल्स मतलब क्या? ट्रुथ, फाउंडेशन के ऊपर ये बेस्ड है, प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है। अभी ये प्रिंसिपल्स क्या है? ये प्रिंसिपल है ट्रुथ, कोई फाउंडेशन, इट इज अ यूनिवर्सल लॉ। ओके, सो हमारी होम्योपैथी कोई गेस वर्क पे बेस्ड नहीं है, ना ही हमारी होम्योपैथी कोई थियरी पर बेस्ड है। ये बेस्ड है एक लॉ के ऊपर, और वो लॉ यूनिवर्सल लॉ है। यूनिवर्सल लॉ मतलब क्या? यूनिवर्स, यूनिवर्स मीन्स व्हाट? ये पूरा जो हम है, जो पूरा ये जो दिख रहा है हमारे आजू बाजू, ये सब यूनिवर्स ही है। अर्थ, अर्थ, आउटसाइड अर्थ इज एवरीथिंग यूनिवर्स। ओके, आउटसाइड द अर्थ भी यूनिवर्स है, जो प्लैनेटरी सिस्टम है तो वो भी यूनिवर्स है। सो जो भी लॉ आउट ऑफ अर्थ और इनसाइड अर्थ सेम है, वो है लॉ ऑफ यूनिवर्स। फॉर एग्जाम्पल, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, ये जो ग्रेविटेशनल लॉ है, ये अर्थ के अंदर भी सेम है, अर्थ के बाहर भी सेम है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई ऑब्जेक्ट ऊपर फेंक रही हूँ, वो नीचे आएगा। ये क्यों नीचे आ रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से। यूनिवर्स में प्लांट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, राइट? वो क्यों रिवॉल्व कर रहे हैं इन प्रॉपर एक डायरेक्शन में? ये रिवॉल्व कर रहे हैं बिकॉज उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है। ओके, उसके वजह से वो रिवॉल्व कर रहे हैं। सो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो आउटसाइड द अर्थ, जो कि यूनिवर्स है, वहां पे भी सेम है, अर्थ में भी सेम है। ओके, तो ये हुआ यूनिवर्सल लॉ। मतलब जहां पर भी आप जाओगे वहां पे ये लॉ सेम ही रहेगा। अर्थ में कितने भी अर्थक्वेक्स आने दो, कितने भी फ्लड्स आने दो, ओके, फिर भी इतने सारे चेंजेस हुए हैं। मिलियंस ऑफ इयर्स अगो आर अर्थ वाज डेवलप्ड। ओके, उस अर्थ में कितने सारे चेंजेस हुए हैं, कितने सारे ट्रांजिशंस हुए हैं, पर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या चेंज हुआ है? जो न्यूटन ने हमारे निकाला था, वो तब भी सेम था और अभी भी सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि ये लॉ यूनिवर्सल लॉ है, जो ऐसे कहते हैं कि यूनिवर्सल लॉ कभी भी चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट ही रहेगा। वैसे ही जो हमारी होम्योपैथी है, वो यूनिवर्सल लॉ पर बेस्ड है, और वो लॉ है सिमिलिया सिमिलिबिस क्यूरेंटर। मतलब आप कहीं पर भी जाओगे, ये लॉ सेम ही रहेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि सिमिलिया सिमिलिबिस क्यूरेंटर क्या है। तो अगर कोई भी आपको पूछेगा कि होम्योपैथी क्या है, ये स्यूडो साइंस है? नहीं, ये एक प्रॉपर साइंस है, जो लॉ और प्रिंसिपल पर बेस्ड है, और वो लॉ है सिमिलिया सिमिलिबिस क्यूरेंटर। और ये लॉ प्रूव्ड है आर्टिकल्स में। ओके, आप अगर आर्टिकल सर्च करोगे तो आपको इसका एविडेंस मिलेगा, ठीक है। सो हमारी होम्योपैथी ये एक लॉ पर बेस्ड है, यूनिवर्सल लॉ है, ये है सिमिलिया सिमिलिबिस क्यूरेंटर। अभी देखते हैं कि ये सिमिलिया सिमिलिबिस क्यूरेंटर क्या है। ओके, इट इज लाइक योर लाइफ। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज दिस लॉ ऑफ सिमिलिया, क्या है ये हम अभी देखते हैं। लॉ ऑफ सिमिलिया, होम्योपैथी इन्वॉल्व्स administrating a minimum dose of a substance in a healthy person which produces symptoms similar to those of disease. लॉ ऑफ सिमिलर मतलब, अगर आप कोई ड्रग
हेल्दी इंडिविजुअल को दे रहे हैं, तो वो हेल्दी इंडिविजुअल सिम्टम्स प्रोड्यूस करेगा, डिजीज प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। सो ये जो ड्रग है, ये हेल्दी इंडिविजुअल को मैंने दिया, तो उस ड्रग ने उसके कैरेक्टर्स प्रोड्यूस किए। ठीक है। अब कोई डिजीज इंडिविजुअल मेरे पास आ रहा है, और मेरा ये जो ड्रग है जिसने हेल्दी इंडिविजुअल में कोई सिम्टम्स प्रोड्यूस किया, वैसे ही सिमिलर सिम्टम लेकर मेरे पास एक डिजीज इंडिविजुअल आ रहा है, और मैंने मेरा ये ड्रग जो सिमिलर सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रहा दिखाई दे रहा है कि ये डिजीज इंडिविजुअल वैसे ही सेम सिम्टम्स लेकर मेरे पास आया है, मैंने वो ड्रग वो डिजीज पर्सन को दे दिया, तो वो डिजीज क्योर हो गया। मतलब अगर कोई ड्रग आप हेल्दी इंडिविजुअल को दे रहे हो, वो डिजीज प्रोड्यूस करेगा। और अगर कोई डिजीज्ड इंडिविजुअल आ रहा है और ड्रग जैसा सिमिलर डिजीज पिक्चर उसका है, और मैंने वो ड्रग वो डिजीज को दे दिया, तो वो वहां पे क्योर हो गया। क्यों क्योर होगा वो? क्योंकि मेरा जो ड्रग है, मैं ये ड्रग कैसे प्रिपेयर करूंगी? मैं ये ड्रग प्रिपेयर करूंगी, इसका सोर्स है प्लांट, एनिमल, मिनरल, कोई भी सोर्स हो सकता है ये ड्रग का। मैं क्या करूंगी, फॉर एग्जाम्पल एक प्लांट है, वो प्लांट मैंने उससे उसका पाउडर ले लिया, उसका कोई बार्क ले लिया, उसको पाउडर में कन्वर्ट किया, उसको एक्सट्रैक्ट किया मैंने, वो प्लांट के वो बार्क को एक्सट्रैक्ट किया, उसका मैंने पाउडर लिया, वो पाउडर को मैंने डाइल्यूट किया, पहले पानी में लेकर उसको वाटर में डाइल्यूट किया, और फिर उसको एनर्जाइज्ड किया, उसको पोटेंटाइज्ड किया, उसमें एनर्जी लाई। तो वो जो प्लांट था, वो जो मेरा ड्रग का सोर्स है प्लांट, उस प्लांट का मैंने बार्क लिया, उस बार्क को पाउडर में कन्वर्ट किया, उसको डाइल्यूट किया, उसमें एनर्जी लाई, और ये जो मेरा सब्सटेंस था वो अब क्या बन गया? ड्रग बन गया, वो मेडिसिन बन गया। अब ये मेडिसिन मैं क्या करूंगी? हेल्दी इंडिविजुअल को दे दूंगी। तो जब मैं ये एनर्जाइज्ड जो मेरा सब्सटेंस है, वो जो मेडिसिन है मेरा, मैं हेल्दी इंडिविजुअल को दे दूंगी, और अब ये ड्रग क्या करेगा? ये डिजीज प्रोड्यूस करेगा। ओके, सो मेरे ड्रग ने क्या किया? डिजीज प्रोड्यूस किया, सिम्टम्स प्रोड्यूस किए। अब कोई भी इंडिविजुअल है, वो डिजीज्ड हो गया, उसको वो बीमारी है, वो मेरे पास आया, सेम सिम्टम्स लेकर आया, तो मैं क्या करूंगी? ये जो मेरा ड्रग है, जिसका सिम्टम और वो जो डिजीज लेकर आया है उसका सिम्टम सिमिलर है, तो ही मैं ये ड्रग इसको दे सकती हूँ। अगर मेरा ड्रग का सिम्टम ये डिजीज को मैच नहीं हो रहा है, मैं नहीं दूंगी। ओके, जब ये सिमिलर है तभी मैं उसको दूंगी। तो मेरा ड्रग क्या करेगा? वो डिजीज इंडिविजुअल पे जाके एक्ट करेगा, और वो ऑलरेडी मेरा ड्रग जो है वो उसमें एनर्जी है, वो डिजीज इंडिविजुअल में जाके डिजीज ही प्रोड्यूस करेगा। पर जो उसका डिजीज है वो वीक है, मेरा जो ड्रग का डिजीज है वो बहुत स्ट्रांग है, मेरे हाथ में है उसकी पोटेंसी 200 1 एम 30 पोटेंसी मेरे हाथ में है, मैं क्या पोटेंसी दूंगी उसको, ताकि मेरा जो ड्रग है वो डिजीज प्रोड्यूस करेगा, और जो ओरिजिनल डिजीज वो पेशेंट सफर कर रहा है वो चला जाएगा। क्योंकि जब भी कोई स्ट्रॉन्ग पावर है वीक पावर को निकाल देती है, तो मेरा जो ड्रग है वो स्ट्रॉन्ग है, वो डिजीज्ड पर्सन के डिजीज को निकाल देगी, क्योंकि वो डिजीज वीक है। और ये क्यों हो रहा है? ये एनर्जी की वजह से हो रहा है, उसका वाइटल फोर्स स्टिम्युलेट हो रहा है, उसके जो प्रॉपर बॉडी का जो डिजीज है उसके उसको निकालने के लिए। और बाद में मेरा जो डिजीज आर्टिफिशियल डिजीज जो प्रोड्यूस हुआ है वो अपने आप कम होता जाएगा, क्योंकि मैंने उसको कोई पोटेंसी में दी है, मेरे ड्रग का सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। तो ऐसे करके जो डिजीज एक्चुअल पर्सन का डिजीज है वो निकल जाएगा, और मेरा जो आर्टिफिशियल डिजीज मेरे ड्रग ने उस डिजीज पर्सन में प्रोड्यूस किया था, वो उसके एक्शन अनुसार ओके एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो भी चला जाएगा, और पर्सन क्या हो जाएगा? क्योर हो जाएगा। तो ये है लॉ ऑफ सिमिलिया। मतलब अगर कोई ड्रग आप हेल्दी इंडिविजुअल को दे रहे हो, वो डिजीज प्रोड्यूस करेगा, और अगर कोई डिजीज पर्सन आ रहा है मेरे पास, ओके वो ड्रग अगर मैं वो डिजीज पर्सन को दे रही हूँ, तो वो पर्सन क्या होगा? वो पर्सन क्योर हो जाएगा। ठीक है।
तो ये है लॉ ऑफ सिमिलिया। अब देखते हैं एग्जाम्पल। इसी का एग्जाम्पल देखते हैं लॉ ऑफ सिमिलिया का, ताकि आपको समझ में आ जाए। हम्म सेम ही एग्जाम्पल है। अभी देखो, हम एक ड्रग लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया ऑनियन। क्या लिया हमने? ऑनियन लिया हमने। ठीक है। ऑनियन क्या है? ऑनियन क्या है? ऑनियन मतलब प्याज। इमेजिन करो, आप प्याज काट रहे हो, ऑनियन काट रहे हो, क्या होगा? आंख से पानी आएगा, नाक से पानी आएगा, छींके आएंगी। हम्म ये ऑनियन जो है उसका कैरेक्टर ही वैसा है। हम्म तो आप काट रहे हो, आंख से पानी आ रहा है, नाक से पानी आ रहा है। जब ये ऑनियन का एक्सट्रैक्ट आप लोगे, उसको डाइल्यूट करोगे पानी में लेकर, और उसमें एनर्जी दोगे, पोटेंटाइज करके उसमें एनर्जी लाओगे, और ये जो मेरा ड्रग है, अभी ये जो सब्सटेंस था, ऑनियन था, वो मेडिसिनल कन्वर्ट हो गया। उसको हमने मेडिसिन में कन्वर्ट किया, उसमें एनर्जी डाली। अब ये मेडिसिन क्या करेंगे, हम हेल्दी इंडिविजुअल को देंगे। हम्म तो ये जो राम पर्सन है, ये कौन है? राम पर्सन है। ये हेल्दी पर्सन है। मैंने क्या किया, ये ऑनियन जो मेरा मेडिसिनल मैंने जिसमें कन्वर्ट किया था, वो एलियम सीपा। एलियम सीपा ऑनियन का साइंटिफिक नेम है, तो हम उसको एलियम सीपा नाम से ही बोलेंगे। ठीक है। तो हमने क्या किया, ये एलियम सीपा जो मेडिसिन है, ये हमने राम को दे दिया। राम एक हेल्दी पर्सन है, तो उसने क्या किया, एलियम सीपा के सिम्टम्स प्रोड्यूस किए। एलियम सीपा के सिम्टम्स क्या आए उसमें? स्नीजिंग, लैक्रिमेशन, कोराइजा। ये सब सिम्टम्स हेल्दी इंडिविजुअल में आ गए। मतलब अभी राम डिजीज हो गया। हेल्दी था राम, अब उसको डिजीज हो गया। ठीक है। तो अब ये जो सिम्टम्स है मैं लिख के लूंगी कि एलियम सिपा का एक्शन मुझे पता नहीं है। ठीक है। पता नहीं है मुझे ये एलियम सिपा का एक्शन क्या है। तो मैंने क्या किया, ये हेल्दी इंडिविजुअल को दे दिया, मतलब ये मैंने राम को दे दिया। अब राम में मैंने देखा कि ये जो एलियम सिपा है वो लैक्रिमेशन प्रोड्यूस कर रहा है, कोराइजा नेजल डिस्चार्ज जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, स्नीजिंग प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये मैंने लिख लिया। अब मेरे पास क्या हो रहा है, शाम जो है वो एक अदर पर्सन है, अदर डिजीज लेकर मेरे पास आ रहा है। तो ये जो शाम है उसको भी वही हो रहा है, लैक्रिमेशन हो रहा है, कोराइजा हो रहा है। वो मेरे पास आ रहा है, मैडम मुझे बहुत सर्दी हुई है, मुझे बहुत जुकाम हुआ है, मेरे आंख से पानी आ रहा है, मेरे नाक से पानी आ रहा है, मुझे कुछ तो दवाई दे दो। तो मैंने क्या किया था, मैंने जो वो एलियम सीपा है वो हेल्दी इंडिविजुअल में टेस्ट किया था। अरे ये सब सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रहा है, और मेरे पास शाम आया है, मैडम मुझे सर्दी बुखार हुआ है, और मेरे पास अभी ये ड्रग है, वैसा ही ड्रग है, उसको सेम सिम्टम्स है ड्रग का। ड्रग में भी सर्दी है, जुकाम है, लैक्रिमेशन है, कोराइजा है। मैं क्या करूंगी, अभी ये जो मेरा मेडिसिन है मैं ये दूंगी शाम को। क्यों दूंगी शाम को? क्योंकि शाम वैसा ही सिम्टम मेरे पास लेकर आया है। अगर वो मेरे पास कुछ अलग सिम्टम लेकर आया आता था, जैसे कि पेट दुख रहा है, लूज मोशंस हो रहा है, तो मैं ये एलियम सीपा उसको नहीं देती, मैं कोई और ड्रग देती जो उसको सिमिलर है। पर अभी मेरे पास शाम आ रहा है, उसको सर्दी जुकाम है, तो मैं क्या करूंगी, उसको एलियम सीपा दूंगी। क्योंकि मेरे ड्रग का सिम्टम और शाम की डिजीज का सिम्टम सिमिलर है। तो मैंने क्या किया, शाम को, डिजीज्ड पर्सन को ये एलियम सीपा दे दिया। तो मेरे एलियम सीपा ने क्या किया, उसमें एनर्जी है, उसकी कोई पोटेंसी है, उसका कोई ड्यूरेशन है। तो मैंने ये शाम को दे दिया, शाम ने वो कंज्यूम कर लिया। अब शाम के बॉडी में जाकर ये एलियम सीपा क्या करेगा, उसका जो डिजीज है, एलियम सीपा के जो सिम्टम्स है वो प्रोड्यूस करेगा। हम्म तो उसको कभी कभी होम्योपैथिक एग्रेवेशन कहते हैं हम इस चीज को। मतलब क्या होता है, होम्योपैथिक एग्रेवेशन में डिजीज सिम्टम्स थोड़े एग्रेवेट होते हैं। क्यों एग्रेवेट होता है? क्योंकि ये जो मेडिसिन है वो जाके बॉडी में डिजीज, सेम वैसा ही डिजीज प्रोड्यूस करती है। जो हमारा बॉडी का डिजीज ऑलरेडी है, वो क्या होता है, वो वीक होता जाता है। और ये जो आर्टिफिशियल एनर्जी है, वो जो डिजीज रहता है वो स्ट्रांग रहता है। तो वो एक्चुअल बॉडी का जो डिजीज है ना, वो क्या होता है, वीक होता है।
और ये जो मैंने मेडिसिन से डिजीज बॉडी में क्रिएट किया है, डिजीज्ड इंडिविजुअल के ही बॉडी में जो मैंने डिजीज प्रोड्यूस किया है, वो स्ट्रांग होगा और ये वीक डिजीज को, बॉडी के एक्चुअल डिजीज को वो निकाल देगा। और ये जो आर्टिफिशियल डिजीज जो डेवलप हो रहा है, वो अपने आप कम होता जाएगा उसका एक्शन, क्योंकि वो डोज मेरे हाथ में है। मैंने डिसाइड किया है उसको कौन सी पोटेंसी रहेगी, मैंने डिसाइड किया है कि उसका एक्शन कितने टाइम तक रहेगा, तो वो उस पे डिपेंड करेगा। और फिर फाइनली क्या होगा, एक्चुअल डिजीज भी चला जाएगा और मेडिसिनल डिजीज भी चला जाएगा और फिर पर्सन क्योर हो जाएगा। ये सब हैनेमन ने दिया है, डॉक्टर हैनेमन ने ऑर्गेनन में दिया है। ठीक है। 29th aphorism, modus operandi, he has given this, how a particular drug, how law of similia works. Okay, सो ये है लॉ ऑफ सिमिलिया। तो अभी क्या देखा हमने, राम डिजीज बन गया और श्याम क्योर हो गया, क्योंकि सिमिलर सिम्टम है ड्रग का और उसके डिजीज का। तो अगर आपको कोई ड्रग का एक्शन ढूंढना है, आप भी अपने आपके कोई, अगर आपको भी डिस्कवर करना है कोई ड्रग, आप कर सकते हो। पर उसको पहले आपको मेडिसिनल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। वो जो सोर्स ऑफ some any source you are taking, you have to convert it into medicine, then you have to test it on healthy humans. जब आप हेल्दी ह्यूमंस में टेस्ट करोगे तभी आपको वो जो ड्रग है उसका कैरेक्टर पता चलेगा, तो उसको कहते हैं ड्रग प्रूवेंट। तो हमारे होम्योपैथी में हम हेल्दी इंडिविजुअल्स पर ड्रग प्रूव करते हैं। क्यों? क्योंकि उसका कोई एकदम बड़ा साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है, बहुत बड़ा साइड इफेक्ट नहीं होता है, तो हम ये इसको कहते हैं ड्रग प्रूविंग। तो आप भी न्यू ड्रग्स प्रोड्यूस कर सकते हो और फिर उसको लिख के रख सकते हो। और जब भी आपके पास वैसे सिम्टम्स लेकर कोई पर्सन आ रहा है, डिजीज इंडिविजुअल, सेम वो ड्रग के कैरेक्टरिस्टिक्स लेकर आ रहा है, तो वो ड्रग आप उसको अप्लाई कर सकते हो। तो ये जो है होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका, वो ऐसे ही है। होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका सब ड्रग्स दिए हुए हैं, और जो भी डिजीज इंडिविजुअल और डिजीज्ड पर्सन आपके पास वो सिम्टम्स लेकर आएगा, तब वो ड्रग आपको उसको देना है। तो सिमिलर सिमिलर आपको मैच करना है ताकि वो निकल जाए, डिजीज पूरा निकल कर क्योर हो जाए। ठीक है, ये है सिमिलिया सिमिलिबिस क्यूरेंटर। ओके, तो अब हमने ये समझ के ले लिया, ठीक है, कि होम्योपैथिक मटीरिया में होम्योपैथी क्या है, और उस वो कैसे लॉ पर बेस्ड है। तो होम्योपैथी समझ में आया क्या है। होम्योपैथी एक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जो ह्यूमंस को, प्लांट्स को ट्रीट करती है। डॉक्टर सैमुअल हैनेमन ने ये सिस्टम को डिस्कवर किया है, और ये जो सिस्टम है ये बेस्ड है सिमिलिया सिमिलिबिस क्यूरेंटर, ये जो लॉ है इसके ऊपर ये सिस्टम बेस्ड है। अब आगे देखेंगे। अब देखते हैं कि होम्योपैथी कैसे ओरिजिनेट हुई, डॉक्टर सैमुअल हैनेमन को कैसे मतलब होम्योपैथी डिस्कवर करने का सूझा। ओके, सो डॉक्टर सैमुअल हैनेमन ये कौन है, ये मैंने बताया था कि ये डॉक्टर सैमुअल हैनेमन जो है, ये एक डॉक्टर ऑफ मेडिसिन है, मतलब ही इज अ एमडी डॉक्टर, एंड ही इज स्पेशलाइज्ड इन केमिस्ट्री एंड टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च वर्क, इनमें ये स्पेशलाइज्ड है। ये जो डॉक्टर हैनेमन है ये प्रैक्टिस करते थे एलोपैथी। तो उनके टाइम में वो एलोपैथी प्रैक्टिस करते थे, ही वॉज अ एलोपैथिक डॉक्टर। तब वो हॉस्पिटल्स में ड्यूटीज करते थे। ऑब्वियसली एवरी एलोपैथ हैज टू डू देयर रेजिडेंशियलशिप, हैज टू वर्क इन हॉस्पिटल। सिमिलरली हमारे ये जो डॉक्टर हैनीमैन थे ये भी हॉस्पिटल्स में वर्क करते थे। पर उस वक्त क्या था, एलोपैथी जो थी वो गैस वर्क पे काम करती थी, थियोरीज पे काम करती थी। दे वर एक्सपेरिमेंटिंग, दे वर नॉट हैविंग एनी प्रिंसिपल, दे वर नॉट हैविंग एनी लॉ। वो ऐसे ही एक गेस वर्क, हाँ ये ऐसे किया तो देखते हैं क्योर होता है क्या, ऐसे गेस वर्क पे, हाइपोथेसिस पे वो लोग काम करते थे। तो क्या हुआ उस वक्त, वो क्या करते थे, अगर कोई डिजीज है इंडिविजुअल को तो वो ब्लड लेटिंग करते थे। ब्लड लेटिंग करना मतलब क्या, वो ब्लड निकालते थे। उनका ऐसा ही थियरी था कि अगर ये पर्सन को ये डिजीज हुआ है तो उसका अगर ब्लड हम निकाल लेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। ओके, उसको अगर हम पर्जेटिव देंगे, मतलब उसको अगर हम वॉमिटिंग इंड्यूस करेंगे, डायरिया इंड्यूस करेंगे, तो वो पर्सन ठीक हो जाएगा। ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंस हम निकाल देंगे ब्लड के थ्रू तो वो पर्सन ठीक हो जाएगा। या फिर उसको एर्सेनिक, मर्क्यूरी जैसे सब्सटेंस इंजेक्ट करते थे बॉडी में,
तो वो ठीक हो जाएगा। ऐसे हार्श ट्रीटमेंट डॉक्टर सैमुअल हैनेमन के टाइम पे यूज किया जाता था। तो ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा है वही कि ब्लड लेटिंग, टॉक्सिक मेडिकेशंस, पर्जिंग्स, ये सब ऐसे ट्रीटमेंट उस समय वो प्रैक्टिस करते थे। तो क्या हुआ, डॉक्टर हैनेमन को सैमुअल, अपने डॉक्टर जो हैनेमन है, उनको ये सिस्टम बिल्कुल पसंद नहीं आई। उनको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि अरे ऐसे कैसे कोई मतलब ऐसे सिस्टम प्रैक्टिस कर सकता है। तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने क्या सोचा कि मतलब ब्लड लेटिंग कर रहे हैं, पर्जेटिव्स दे रहे हैं, पेशेंट का फ्लूइड लॉस हो रहा है। अगर फ्लूइड लॉस होगा तो क्या होगा, हाइपोवॉलेमिक शॉक होगा ना, पेशेंट हाइपोवॉलेमिक शॉक से मरेगा, फ्लूइड लॉस हो रहा है। और वैसे ही होता था। पेशेंट, ये जो ट्रीटमेंट जब डॉक्टर्स करते थे तो पेशेंट की डेथ होती थी। ओके, तो डॉक्टर सैमुअल हैनेमन ने सोचा कि अरे पेशेंट डिजीज से मर रहे हैं या फिर हमारे ट्रीटमेंट से मर रहे हैं, इससे अच्छा है उनको ये सिस्टम प्रैक्टिस ही नहीं करनी थी। तो उन्होंने क्या किया, ये सिस्टम छोड़ दी। उन वो बहुत एथिक्स के स्ट्रांग थे, उनको ऐसे गेस वर्क पे काम नहीं करना था। तो एक दिन ऐसे ही बहुत सारे पेशेंट्स की उस दिन डेथ हो गई, तो उन्होंने ये सिस्टम छोड़ देने का सोच लिया और उन्होंने छोड़ दिया। ठीक है। सो here I have written this only everything. Okay, कि it was very difficult for him to understand whether the patient died from disease or from his treatment. So ethical conflict arise हुआ। वो डॉक्टर हैनेमन was a uh, very much principle based man. Okay, he was a man of principle and he was very deeply disturbed by this harmful treatment. So he decided, उन्होंने डिसाइड किया कि ये सिस्टम में एब्डॉन कर दूंगा, ये सिस्टम में प्रैक्टिस नहीं करूंगा। पर अभी फैमिली को तो सपोर्ट करना है। ओके, अगर वो ये ड्यूटीज छोड़ देंगे तो उनके पास इनकम तो चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, इनकम सोर्स जो है वो डेवलप करने के लिए उन्होंने बुक ट्रांसलेशन का जॉब ले लिया। अब जो उनका जो केमिस्ट्री था, हमने देखा आगे कि he is a toxicological researcher as well as he is a good chemist. So उनका नॉलेज बहुत अच्छा था केमिस्ट्री का। तो उन्होंने क्या किया, जो केमिस्ट्री के बुक्स है, टॉक्सिकोलॉजिकल बुक्स है, मेडिकल बुक्स है, वो ट्रांसलेट करना स्टार्ट किया इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। उनकी लैंग्वेजेस भी स्टडी बहुत अच्छी थी। तो उन्होंने ये लैंग्वेजेस में, डिफरेंट लैंग्वेजेस में ये बुक्स कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो इससे क्या हुआ, उनका फाइनेंस भी अच्छा खासा डेवलप हुआ। तो ये सब फाइनेंस के लिए उन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट किया, ये जॉब स्टार्ट की, सॉरी। तो ये जब वो कर रहे थे तो एक दिन क्या हुआ, ऐसे ही वो बुक ट्रांसलेट कर रहे थे। तो ऐसे ही वो एक दिन क्या कर रहे थे, बुक ट्रांसलेट कर रहे थे। तो वो बुक जब ट्रांसलेट कर रहे थे तब वो आए अगेंस्ट वन विलियम क्यूलिन्स मटीरिया मेडिका। ये बुक वो ट्रांसलेट कर रहे थे। तो जब वो ये बुक ट्रांसलेट कर रहे थे उन्होंने देखा कि एक कुछ कंटेंट्स लिखा है, सिंकोना बार्क क्योर्ड मलेरिया। फिर उन्होंने सोचा कि ये सिंकोना बार्क मलेरिया को कैसे क्योर कर रहा है। ओके, तो एक जो स्कॉटिश फिजिशियन है, ये देखो यहाँ पे, ये जो एक स्कॉटिश फिजिशियन है, ये इन्होंने विलियम क्यूलिन जो है, इन्होंने ये बुक लिखा, विलियम्स मटीरिया मेडिका। सो इन्होंने उसमें सिंकोना के बारे में लिखा था। क्या लिखा था पढ़ते हैं हम अभी। देखो यहाँ पे उन्होंने लिखा कि suggested that Cinchona's effectiveness was due to bitterness and astringent property. It had quinine as an active principle which produces symptom similar to malaria in healthy person. When same given to person suffering from malaria, it cured. मतलब क्या लिखा था उन्होंने उस बुक में, डॉक्टर हैनेमन ने, जब विलियम क्यूलेंस मटीरिया अमेरिका जब ट्रांसलेट कर रहे थे वहां पे, विलियम, ये जो स्कॉटिश फिजिशियन है विलियम क्यूलेन, ये पर्सन ने बुक में लिखा था कि सिंकोना
क्योर्स मलेरिया। सिंकोना में ऐसे एस्ट्रिंजेंट और बिटरनेस प्रॉपर्टी है, सिंकोना में क्यूनिन एक्टिव प्रिंसिपल है, जो हेल्दी इंडिविजुअल में अगर हम दे रहे हैं तो वो मलेरिया जैसे सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रहा है। और जब मलेरिया वाला पेशेंट आ रहा है हमारे पास, जब हम सिंकोना उस पेशेंट को देते हैं तो उसका फीवर चला जाता है, उसका मलेरिया चला जाता है, वो क्योर हो रहा है। मतलब सिंकोना का जब बार्क सिंकोना का बार्क पाउडर के फॉर्म में अगर कोई हेल्दी इंडिविजुअल को दे रहे हैं तो वो मलेरिया प्रोड्यूस कर रहा है, और जब मलेरिया लेकर वैसा पर्सन आ रहा है तो सिंकोना बार्क वो मलेरिया को क्योर कर रहा है। ऐसा लिखा था वो बुक में। तो डॉक्टर हैनेमैन ने सोचा ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे सिंकोना क्योर कर सकता है मलेरिया को। तो उनको डाउट हुआ ये थियोरी पे। सो डॉक्टर सैमुअल हैनेमैन डाउटेड दिस थियोरी। he doubted this theory कि how is it possible. So what did he do? ही वॉज अ एक्सपेरिमेंटर। डॉक्टर हैनेमैन क्या थे? वो एक्सपेरिमेंटर थे, वो रिसर्चर थे। तो वो रिसर्च करेंगे ही, राइट। तो उन्होंने ये सच है क्या, उनको थियरीज बिल्कुल पसंद नहीं थी, तो उन्होंने ये सच है क्या देखने के लिए ये सिंकोना बार खुद पे टेस्ट किया। ठीक है, खुद पे टेस्ट किया। क्या किया उन्होंने? सिंकोना बार की पाउडर ली, उसको थोड़ा डाइल्यूट किया। ठीक है, डाइल्यूट किया और उसको ले कंज्यूम किया। कंज्यूम करने के बाद 2 दिन के बाद उन्हें मलेरिया जैसे सिम्टम्स आ गए। उनको बुखार आ गया, इंटरमिटेंट फीवर आ गया, चिल्स आ गए, ठंडी बच के आ गई। ओके। फिर बॉडी एक होने लगा, जैसे मलेरिया मलेरिया के सिम्टम्स पता है ना, फीवर, फिर चिल्स, ठंडी बच के आना, ये सब सिम्टम्स वैसे ही डॉक्टर हैनेमैन को आ गए। वो शॉक, ही वॉज शॉक ऑब्वियसली, ये कैसे हो सकता है। हाँ। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर से मलेरिया सिंकोना फिर से ले लिया और वो मलेरिया क्योर हो गया उनका। ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या किया, और इंडिविजुअल्स में ये ट्राई किया। तो जब वो दूसरे हेल्दी इंडिविजुअल्स पे ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उनको वैसे ही सिम्टम्स मिल रहे थे। ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या किया, फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, सब पे क्या किया, अलग अलग ड्रग्स एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया। सो ऐसे प्लांट, मिनरल्स, एनिमल्स किंगडम से उन्होंने क्या किया, वो जो सब्सटेंस है उसको थोड़ा मेडिसिनल फॉर्म में कन्वर्ट किया और उसको हेल्दी इंडिविजुअल में देना स्टार्ट कर दिया। जब वो हेल्दी इंडिविजुअल्स में देते थे तो वो ड्रग है वो सिम्टम्स प्रोड्यूस करते थे हेल्दी इंडिविजुअल में, तो वो क्या करते थे, लिख के लेते थे कि ये ड्रग ने ये सिम्टम्स प्रोड्यूस किया। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी सिंकोना है तो उसने फीवर, चिल्स ये सब प्रोड्यूस किया। मेंटल सिम्टम्स भी लिखते थे, मेंटल सिम्टम्स क्या आ रहे हैं वो ड्रग देने के बाद। ऐसे बहुत सारे ड्रग्स का किया, ऐसे करके 99 ड्रग्स डॉक्टर हैनेमैन ने डिस्कवर किए हैं। और वो होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका प्यूरा में है। तो उनके टाइम में उन्होंने 99 ड्रग्स है जो वो हेल्दी इंडिविजुअल में टेस्ट किए हैं, वो आज हम अभी भी यूज कर रहे हैं डिजीज इंडिविजुअल में। तो ये जो भी मतलब ड्रग्स प्रूव होता था हेल्दी इंडिविजुअल पे वो लिख के लेते थे। और उन्होंने देखा कि ये जो ड्रग सच में हेल्दी इंडिविजुअल में सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रहा है, ऐसे उन्होंने देखा। और फिर जो भी डिजीज इंडिविजुअल आते थे वो ये ड्रग उस डिजीज इंडिविजुअल को देते थे और वो क्योर होता था। तो इससे पता चला, मतलब एक पर्टिकुलर से वो जनरल तक पहुंचे कि ये सिमिलिया सिमिलबस जो लॉ है वो सच है। क्योंकि वो ड्रग हेल्दी इंडिविजुअल में डिजीज प्रोड्यूस कर रहा है, और जब डिजीज इंडिविजुअल सिमिलर सिम्टम टू दैट ऑफ ड्रग लेकर आ रहा है और हम अगर करेक्ट ड्रग उस डिजीज को दे रहे हैं तो सच में क्योर हो रहा है, क्योंकि सिम्टम सिमिलैरिटी है डिजीज में भी और ड्रग में भी। जब ये सिमिलर सिमिलर एक साथ आ रहे हैं तो वो डिजीज को निकाल रहे हैं और क्योर ला रहे हैं। ये प्रूव हुआ। ठीक है। So Dr. Hahnemann doubted this theory, tested it on himself, and he developed similar symptoms in healthy state. तो डॉक्टर हैनेमैन ने मलेरिया जैसे सिम्टम्स डेवलप किए एंड ही अप्लाइड टू पर्सन सफरिंग विद सिंकोना। और जब उन्होंने ये पर्सन सफरिंग टू सिंकोना में अप्लाई किया तो मलेरिया क्या हुआ, मलेरिया क्योर हो गया। Okay, so he started proving on every drug on himself, his friends, and he recorded the effect of
द ड्रग इन द बुक। और जब वो ये सब सिम्टम्स हेल्दी इंडिविजुअल में प्रूव करते थे, तब वो लिख के लेते थे। जब वो लिख के लेते थे ये सब, तब बनी हमारी होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका की बुक। सो ये है होम्योपैथी। होम्योपैथी से ओरिजिनेट हुई होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका। होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका इज नथिंग बट अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ द ड्रग, इट्स इफेक्ट, इट्स एक्शन, ताकि आप ये सब पढ़ सको। आपको ये सब ड्रग पढ़ना है और ये आपको डिजीज इंडिविजुअल से मैच करना है। जब ये ड्रग डिजीज इंडिविजुअल को आप दोगे, तब क्योर होगा। सो ये है हमारी होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका। सो व्हाट इज होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका? होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका इज careful observed and recorded symptoms produced in healthy individual. Okay, so it is nothing but it is observed and recorded symptoms produced by healthy individual, and then the same medicines are applied to sick. So homeopathic materia medica is a systematic record of effects of various medicines on healthy human beings of different ages, both sexes. It is a storehouse of action and reaction of drug इन हेल्दी इंडिविजुअल। समझ में आया? देखो, होम्योपैथी डॉक्टर हैनीमैन ने कैसे कैसे फाउंड की, कैसे हेल्दी इंडिविजुअल्स में सिम्टम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, कैसे हम डिजीज इंडिविजुअल को वो ड्रग दे रहे हैं। और जब भी हम हेल्दी इंडिविजुअल में कोई ड्रग के एक्शन देख रहे हैं, उसका रिकॉर्डिंग इज होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका। So homeopathic materia medica is a systematic record of various effects of medicine on healthy human being of different ages and sexes. It is a storehouse of all actions and reactions of drugs in healthy individual. Got it? Are you clear with this concept? Okay. सो होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका जो होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका प्यूरा जो है, उसमें 99 ड्रग्स हैं। और ये ऑल 99 ड्रग्स हेल्दी इंडिविजुअल में प्रूव्ड है। और जो भी सिम्टम्स हेल्दी इंडिविजुअल में वो ड्रग ने प्रोड्यूस किए हैं, वो डॉक्टर हैनेमन ने उसमें लिखा है। ठीक है। अब व्हाट इज होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका देखा। अब होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका का एग्जाम्पल देखते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल एक ड्रग है, तो वो ड्रग कौन से फैमिली से लिया है, उसका सोर्स क्या है, कौन सा सोर्स है, वो सब वो होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका में ड्रग के अंदर दिया रहता है कि उसका प्रिपरेशन कैसा किया गया है। ओके। तो फिर वो ड्रग का मेंटल लेवल पे पेशेंट के एक्शन क्या है, फिजिकल लेवल पे एक्शन क्या है, ऑर्गन लेवल पे एक्शन क्या है। ओके। वो सिम्टम्स क्या प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे सिंकोना है, सिंकोना क्या कर रहा है, फीवर प्रोड्यूस कर रहा है। उसके और भी कैरेक्टर्स है। जब भी हम हेल्दी इंडिविजुअल को उसको देते हैं, तो वो और भी मेंटल सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है, जैसे कि सैड, डिस्पोंडेंसी, एलिमेंट फ्रॉम फ्लूइड लॉस। मतलब अगर कोई पेशेंट में बहुत ज्यादा फ्लूइड लॉस हो रहा है, फ्लूइड लॉस होने के वजह से उसको फीवर आया है, ये भी सिंकोना का सिम्टम है। ये कैसे हमें पता चला? ये हेल्दी इंडिविजुअल में हमने देखा है कि उसको फ्लूइड लॉस हुआ और फिर उसको ये सिम्टम्स आ गए। ओके। उसको नाइट में एग्रेवेशन है। ये सब हमने हेल्दी इंडिविजुअल्स में देखा, और फिर वो हमने वो रिकॉर्ड किया है। सो ये जो होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका है, उसमें वो ड्रग दिया है, उसका सोर्स क्या है, उसका मेंटल लेवल पे एक्शन क्या है, उसका फिजिकल लेवल पे एक्शन क्या है, उसका पर्टिकुलर ऑर्गन लेवल पे एक्शन क्या है, वो सब होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका हर एक ड्रग का ऐसे दिया हुआ है। तो आपको ये समझना है, आपको ये समझकर उसको मेमोराइज भी करना है, आपको याद रखना ही है, ताकि जब पेशेंट आपके पास ऐसे सिम्टम्स लेकर आए, करेक्ट ड्रग, करेक्ट रेमेडी आप वो डिजीज्ड इंडिविजुअल को दे सके। आपको सिमिलैरिटी मैच करनी ही है। ठीक है। तो इसके वजह से आपको होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका पढ़ना है। तो what are the contents of homeopathic materia medica? Source of drug is given, which from where it is derived, plant, mineral, animal. Mental symptoms are given, like mood क्या है उसका, emotions, thoughts उसके कैसे है वो भी दिया है।
हर एक ड्रग के अंदर उसकी फिजिकल सिम्टम्स क्या है, मतलब ऑर्गन एंड सिस्टम में क्या चेंजेस हुए हैं, पैथोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या है वो ड्रग का, ओके, ड्रग बॉडी पे कैसे एक्शन करता है, ये पैथोलॉजिकल सिम्टम्स देखेंगे। ठीक है। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग, मतलब ड्रग के प्रॉपर्टी क्या है, उसका नेचर क्या है, उसका टाइम ऑफ एक्शन क्या है, कितने टाइम तक, 60 डेज एक्शन है, 30 डेज एक्शन है, ओके, उसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है बॉडी पे, ड्रग फैमिलीज, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज, ओके, फैमिलीज ऑफ ड्रग देखेंगे। फिर फिजियोलॉजिकल एक्शन कि हाउ द ड्रग अफेक्ट्स द सिस्टम ऑफ डिफरेंट बॉडी, एंड दिस स्ट्रक्चर्ड अप्रोच हेल्प्स होम्योपैथ सिलेक्टिंग राइट रेमेडी बेस्ड ऑन इंडिविजुअल सिम्टम्स। तो ये जो होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका है, ये हमें एक राइट रेमेडी सिलेक्ट करने में हेल्प करेगी, राइट डिजीज के लिए। ठीक है। तो ये जो है, ये है हमारी होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका। अभी हम देखते हैं कि होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका आपके फर्स्ट ईयर में क्यों इंक्लूड किया गया है। तो होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका फर्स्ट ईयर में इंक्लूड करने का रीजन है, आप जब क्लिनिकल प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे आफ्टर योर बीएचएमएस, तब आपका एक फाउंडेशन फर्स्ट ईयर से ही बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाए। आप क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए फर्स्ट ईयर से ही नॉलेज गेन करना स्टार्ट कर सको, आप में स्किल्स डेवलप हो सके, इसलिए आपको अभी से ही होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका पढ़ना स्टार्ट करना है। तो ये हेल्प करेगा आपको होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका के रेमेडीज अंडरस्टैंड करने के लिए। तो होम्यो आपको अगर फ्यूचर में जाके होम्योपैथिक मेडिसिन देना है, आपको होम्योपैथी प्रैक्टिस करना है, तो इसके पहले आपको होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका का नॉलेज होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए ना। तो आपको रेमेडीज पता होना चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज होगा, हम्म, तो ही आप आके जाके अच्छा प्रैक्टिस करोगे। तो आपके पास नॉलेज होना इम्पोर्टेंट है। तो पहले आपको होम्योपैथिक रेमेडीज ही समझ कर लेना होगा। तो होम्योपैथिक रेमेडीज अगर समझोगे, तो अभी से आपको उसका सोर्स पता चलेगा, प्लांट है, मिनरल है, क्या है। फिर उस रेमेडी का बॉडी पे क्या एक्शन है, हेल्दी इंडिविजुअल में वो सिम्टम्स कैसे प्रोड्यूस कर रहा है, क्या सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रहा है, हर एक मेडिसिन का हर एक कैसा अलग एस्पेक्ट है, अलग एंगल है, ये आपको समझ में आएगा। जब आपको मेडिसिन समझ में आएगी, तो आपको डिजीज इंडिविजुअल समझ में आएगा। तो इसलिए होम्योपैथिक रेमेडी मेडिसिन जो है वो आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ना है। होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका में होम्योपैथिक रेमेडीज है जो आपको अभी से पढ़ना है। तो आपको वो रेमेडी समझ में आएगी, तो ही आपको वो डिजीज इंडिविजुअल समझ में आएगा। ठीक है। सेकेंड थिंग इज, इट विल हेल्प यू टू प्रिपेयर फॉर क्लिनिकल प्रैक्टिस। फर्स्ट ईयर में क्लिनिकल प्रैक्टिस में कैसे होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका हेल्प करेगा, सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप होम्योपैथिक रेमेडीज पढ़ोगे, तो आप में आपको समझ में आएगा कि केस में आपको क्या देखना है, क्या करना है, केस टेकिंग आपको कैसे करनी है। पर्सन आपके पास आ रहा है, आपके पास मटीरिया मेडिका का नॉलेज है, वो उसके सिम्टम्स आपको बता रहा है, तो फिर आपको केस लेने में इजी जाएगा कि आपको क्या क्या सिम्टम्स देखने रहते हैं, आपको केस कैसे लेनी है, कब से चालू हुआ है, ठीक है, आपको ये डिजीज कब से चालू हुआ है, आपको इसके पहले कौन सी बीमारियां थी। तो ये सब हम ड्रग में देखेंगे ना, कि हाँ इसके इसको ये सिम्टम्स है, इसको ये बीमार, मतलब ये हो सकता है। तो आपको वो ड्रग वो डिजीज पर्सन को देने में इजी हो जाएगा। तो ये जो आपको होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका का नॉलेज है, रेमेडीज का नॉलेज है, ये आपको केस लेने में हेल्प करेगा। ठीक है। पर्सन के चीफ कंप्लेंट्स, तो कब से स्टार्ट की, कब से स्टार्ट हुआ सिम्टम्स, कब से, मतलब कब एग्रेवेट होता है, नाइट को, डे को, इवनिंग को, कब एग्रेवेट होता है। तो ये सब आप क्वेश्चंस भी पूछने में एक्सपर्ट हो जाओगे जब आप क्वेश्चंस पूछोगे। ओके, जब आप अच्छी केस हिस्ट्री लोगे, तो आपको रेमेडी देने में इजी हो जाएगा। तो इसलिए केस टेकिंग में होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका का नॉलेज यू विल हेल्प यू। फिर डायग्नोसिस में भी, डायग्नोसिस में कैसे, जब आप पेशेंट को सिम्टम्स पूछ रहे हो, तो आपको डिजीज डायग्नोस करने में इजी हो जाएगा। और ट्रीटमेंट प्लान, होम्योपैथिक रेमेडी आपको क्या देनी है पर्सन को, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। सो इट हेल्प्स, सो इट विल प्रिपेयर यू फॉर क्लिनिकल प्रैक्टिस। सो ये सब जब आप कर रहे हो ये 4 इयर्स में, इसमें आपके स्किल्स प्रोड्यूस होंगे एट द एंड ऑफ द बीएचएमएस। सो ये जब स्किल्स डेवलप होंगे,
तो आप पेशेंट को इजीली क्योर कर सकते हो। तो दिस फर्स्ट ईयर, so in your first year, this homeopathic materia medica is involved so that it will prepare you for clinical practice. Okay, for your case taking, making diagnosis, treatment planning, it will help you to choose correct remedy for correct patient. Okay, it will teach you to compare similar remedy. अभी दो रेमेडीज सिमिलर हो सकती है, तो उसको आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे, कैसे आप कंपेयर करोगे दो सिमिलर रेमेडीज को। It will help you in prescribing the medicine. See, helps in identifying correct remedy, helps to compare similar remedy, help you in prescribing the medicine. Is it clear? ठीक है, तो ये है prepare you in clinical practice. And next thing is, आपको ये होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका जो है, आपको इसका कनेक्शन करना है दूसरे होम्योपैथी के सब्जेक्ट से, जैसे है फार्मेसी, ऑर्गेनिक और रेपर्टरी। जो फार्मेसी है वो आपको सिखाएगा कि ये जो मेडिसिन है वो कैसे प्रिपेयर की गई। ओके, उसका प्रिपरेशन कैसा था, वो कैसे सोर्स से एक्सट्रैक्ट की जाती है, उसको कितने 99 डाइल्यूशन में कैसे उसको डिसॉल्व करना है, कैसे उसको एनर्जाइज्ड करना है। ओके, उसको मतलब सब्सटेंस से मेडिसिन में कैसे कन्वर्ट करना है, ये आप सीखोगे फार्मेसी में। ओके, उसके बाद आएगा ऑर्गेनिक। जब पेशेंट आ रहा है आपके पास, तो वो जो मेडिसिन आपने करेक्ट चूज की है उसको कौन से प्रिंसिपल्स के बेसिस पे आप पेशेंट को दोगे। ओके, मेडिसिन ऐसे ही नहीं देनी है पेशेंट को, उसका पोटेंसी देखना है। मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि पोटेंसी पे डिपेंड करता है कि हमारा रेमेडी का एक्शन क्या रहेगा, कितने देर तक हमारा रेमेडी का एक्शन रहेगा। क्योंकि हमें ओरिजिनल डिजीज निकालने के लिए आर्टिफिशियल डिजीज बनानी है, और जो आर्टिफिशियल डिजीज है वो एक्शन के अनुसार वो भी निकल जाएगी और पर्सन क्योर होगा। इसके लिए ऑर्गेनन में ये पोटेंसी सिलेक्शन बताया है कि कौन सी पोटेंसी सिलेक्ट करनी है अगर आप राइट रेमेडी चूज कर रहे हैं। अगर आप राइट रेमेडी चूज करोगे पर प्रॉपर पोटेंसी नहीं दोगे, ओके, प्रॉपर प्रिंसिपल्स नहीं यूज करोगे, तो पेशेंट क्योर नहीं होगा। तो आपको राइट रेमेडी सिलेक्ट करने के बाद भी आपका कोई स्टेप है, पोटेंसी है, ससेप्टिबिलिटी है, ऑर्गेनिन है, आपको कुछ प्रिंसिपल्स याद रखने हैं, आपको बायास नहीं बनना है, आपको प्रिजुडाइज्ड नहीं बनना है, आपको अनप्रिजुडाइज्ड बनना है, ये सब प्रिंसिपल्स आपको फॉलो करने हैं। और उसके बाद आता है रेपर्टरी। रेपर्टरी क्या है? रेपर्टरी मतलब जो सिम्टम्स है पेशेंट को, वो आप रूब्रिक के लैंग्वेज में कन्वर्ट करोगे, फिर एक ग्रुप ऑफ रेमेडीज आएगा। तो आपका एचएमएम नॉलेज और रेपर्टरी नॉलेज एक क्रॉस चेक हो। रेपर्टरी आपको ग्रुप ऑफ रेमेडीज देगा, तो आपको उससे सिलेक्ट करना है कि मेरा पेशेंट कौन से ड्रग में एग्जैक्ट बैठ रहा है। तो ये हेल्प करेगा आपको रेपर्टरी। तो एचएमएम पढ़ना सिर्फ उससे कुछ काम नहीं होगा, अगर राइट रेमेडी भी सिलेक्ट करोगे तो उसके पीछे वो कैसी बनी हुई है, कैसे उसको बनाया जाता है, कैसे उसको पेशेंट में अप्लाई किया जाता है, और रेपर्टरी के यूज से आप कैसे एकदम राइट रेमेडी वो पेशेंट को दोगे। इस ये सब कनेक्शंस के साथ आपको सब्जेक्ट्स पढ़ना है। ठीक है, तो ये है फार्मेसी, रेपर्टरी, ऑर्गेनन। Without materia medica, student cannot understand how to analyze symptom and select remedy. So in our lectures, we will cover all first year BHMS syllabus with practical insight. So ऐसे ये बेसिस पर हम होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका पढ़ेंगे। तो समझ में आया होम्योपैथी क्या है, लॉ ऑफ सिमिलर्स क्या है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ सिमिलर्स के बाद होम्योपैथी कैसे डेवलप हुई, होम्योपैथी से डॉक्टर हैनीमैन ने होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका कैसे डेवलप किया, और होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका आपको फर्स्ट से बीएचएमएस में क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका पता चले होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका क्या है। ठीक है, सेकेंड थिंग आपका क्लिनिकल प्रैक्टिस, जो आफ्टर बीएचएमएस यू विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, अभी से आपको स्किल्स डेवलप करना आप स्टार्ट कर सकोगे। केस टेकिंग आप अभी से स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो केस में क्या लेना है और क्या देखना है ये आपको अभी से समझ में आ जाएगा, अगर आपको होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका के रेमेडीज का नॉलेज होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है नॉलेज ले लो होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका को, उसको समझ ले लो, उसको अंडरस्टैंड करो, उसको मेमोराइज करो। दोनों इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकली तो हम देखेंगे ही। ठीक है, और उसका अलग अलग सब्जेक्ट के साथ कैसे रिलेशन है, तो ये सब हम देखेंगे।
तो ये आज से हम स्टार्ट करेंगे होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका लेक्चर सीरीज। तो ये है इंट्रोडक्टरी सेशन। सर जस्ट ये एक ग्लिम्स था कि क्या होम्योपैथी है, क्या होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका है। तो फिर हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे ये लेक्चर्स, और ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बहुत इंफॉर्मेटिव होगा, प्रैक्टिकल बेस्ड होगा। तो हम सब और नया नया आपको सिखाएंगे, ठीक है। So we welcome you all. I welcome you all in our homeopathic materia medica lecture series. Okay. So wish you all the best. Thank you.